فرنٹ آف پاکستان کے ناظرین، اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے مہنگائی، ناانصافی اور بے یقینی کے خوف کے بغیر جی سکیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج سوال یہ نہیں عمران خان صحیح ہے یا نواز شریف۔ ان فرنٹ آف پاکستان کے ناظرین، آج سوال یہ ہے کیا پاکستان صحیح راستے پر ہے یا پھر ہم عوام سیاستدانوں کی اس لڑائی میں صرف تماشائی بن کر رہ گئے ہیں؟ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، نواز شریف یا عوام؟ کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی، قبول ہے آپ کو؟ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے قوتیں ہیں جو ہمارے ملک میں قائد اعظم کے وفاقی اور پارلیمنٹری نظام نہیں دیکھنے چاہتے ہیں۔ یہ تو نہ جانے کہاں سے آئی ہے اور اس کو کس نے لا کے بٹھا دیا ہے، اور آج پورے پاکستان کی تباہی و بربادی کر رہی ہے یہ عورت۔ اگر اتنی سی پبلک اس جذبے سے اور جنون سے اگر وہ کہہ دیتی گو عمران گو، تمہارے کہنے سے پہلے میں چھوڑ کے چلا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ان فرنٹ آف پاکستان، میں ہوں نوید بلوچ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ان فرنٹ آف پاکستان کے ناظرین، یہ ویڈیو کسی لیڈر کے خلاف نہیں ہے اور نہ ہی یہ ویڈیو کسی پارٹی کے حق میں ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کی آواز ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، اسٹیبل ہو، جہاں مفت تعلیم و صحت ملے اور مہنگائی سے نجات حاصل ہو، پاکستان میں صرف قانون کی حکمرانی ہو۔ ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح 3 چیپٹر میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں: امید، حالات و واقعات، چیپٹر نمبر 2 ٹکراؤ، طاقت اور تقدیر کا، چیپٹر نمبر 3 سولوشن، کون بچائے گا پاکستان، 5 راستے پاکستان کو بچانے کے لیے۔ ان فرنٹ آف پاکستان کے ناظرین، 2013 میں پاکستان کی سیاست میں ایک طوفان ہوتا ہے، عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تحریک انصاف کا پہلا آفس گڑی شاہ میں کھلا۔ جو ہم کہیں گے، جو بھی ہم کہیں گے آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ آپ سے صرف ایک درخواست ہے، جو بھی تحریک کو جوائن کرے صرف یہ یاد رکھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اس کو قوم بنانے آئے، ہم اپنے آپ کو آزاد کرنے آئے۔ آپ کو بتاتا ہوں جو چیزیں ہیں، اگر یہ 2 صفتے کیریکٹرسٹکس ایک ملک میں نہ ہو وہ جمہوریت نہیں ہوتی۔ ایک ملک میں انسانیت کا نظام نہ ہو، فلاحی ریاست، اور دوسری انصاف کا نظام نہ ہو، اور اس کا مطلب میرٹ، قانون کی بالادستی، اس کا مطلب کہ عام شہری حکمران کا احتساب کر سکے۔ اور یہ ہے ایک نئی قوم بنانے کے لیے، ایک نیا پاکستان بنانے کے لیے۔ جوانوں کی آنکھوں میں امید، زبانوں پر نیا پاکستان اور سوشل میڈیا پر ایک سونامی۔ لیکن 2013 میں نواز شریف 18ویں پرائم منسٹر آف پاکستان بنتے ہیں۔ Honorable Mia Mohammad Nawaz Sharif Saab has secured 244 votes. I request the Honorable Prime Minister to take the seat of the Prime Minister kindly. Congratulate Honorable Mia Mohammad Nawaz Sharif Saab to have been elected as the Prime Minister of Pakistan. اور یہاں سے شروع ہوتا ہے پاکستان کی سیاست کا سب سے لمبا اور سخت امتحان۔ ان فرنٹ آف پاکستان کے ناظرین، اسلام آباد کی طرف بڑھتا ہوا 2014 کا آزادی مارچ، وہ ایک لانگ مارچ نہیں تھا، وہ ایک احساس تھا، ایک امید تھی جو 4 مہینے اسلام آباد میں نظر آئی تھی۔ ان فرنٹ آف پاکستان کے ناظرین، عمران خان اس وقت اپوزیشن میں تھے، لیکن آواز میں طاقت تھی، جلسے، دھرنے اور دباؤ۔ ان فرنٹ آف پاکستان کے ناظرین، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت 2014 میں وہ لا اینڈ آرڈر کہاں تھا جو آج ہمیں پاکستان میں کوئی بھی اگر غیر قانونی طور پر احتجاج یا پروٹیسٹ کرتا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے۔
आखिर उस वक्त इमरान खान को किसकी सपोर्ट थी? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 टकराव, ताकत और तकदीर का, क्योंकि फिर आता है पनामा का तूफान, इल्जामात, हायरिंग्स और फैसले। नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। पनामा का बड़ा तारीखी फैसला। जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं, तो अदलिया के किरदार पे एक शेर है, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मुझे क्यों निकाला? मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं, खलाई मखलूक से है। ये जो मेरे खिलाफ फैसला आया है ना, मुझे निकाल दिया कि नवाज शरीफ ने बेटे से तनख्वाह ली। मेरी समझ में तो नहीं आया, आपकी समझ में पता नहीं आया है कि नहीं आया। उसके बाद मुझे मुस्लिम लीग की सदारत से निकाल दिया। लेकिन जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया है, वो आज अवाम का फैसला भी देख ले, आके सुन ले इस फैसले को, सादिकाबाद के अवाम को। नवाज शरीफ को एक मुल्क की खिदमत कर रहा था, आपकी खिदमत कर रहा था। और नवाज शरीफ वो शख्स है, जब भी कोई दौर आया है, हमने पाकिस्तान के अंदर अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो मंसूबे बनाए हैं, मुझे बताओ कभी पीपल्स पार्टी ने वो मंसूबा बनाया है? ये पीटीआई तो शाही कुछ नहीं है, ये तो मजाक कर रहे हैं, कौम के साथ बल्ला लेके निकले हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, भाई इमरान खान साहब, मेरा आपके साथ कोई मुकाबला नहीं है। अल्लाह मेरा जानता है, आज मुकाबला आपके साथ नहीं है। जरदारी साहब, नवाज शरीफ का आपके साथ भी कोई मुकाबला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुकाबला, मेरा मुकाबला, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला ना जरदारी के साथ है, ना इमरान खान के साथ है। हमारा मुकाबला तो एक खलाई मखलूक के साथ है जो नजर नहीं आती। और उसी वक्त सोशल मीडिया पर एक आवाज गूंजती है, कौन बचाएगा पाकिस्तान? क्या आपको ये याद है? और जब एक कौम अपने नजरिए से हटती है, वो तबाह हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले उसकी बुनियाद इंसाफ पे रखी थी। सब कानून के सामने बराबर थे। पाकिस्तान 1947 में बना और हमारा लीडर था कायदे आजम। कायदे आजम के जो मुखालिफ भी थे, वो कायदे आजम को सादिक और अमीन कहते थे। एक रियासत जो अदल और इंसाफ में लोगों को आजाद करती है, आजाद ज़हन बड़े बड़े काम करते हैं। और हम किधर पहुंच गए आज? मेरे माँ बाप फख्र से कहते थे कि हम गुलाम हिंदुस्तान में पड़े हुए, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन आपने देखा कि इमरान खान ने पीटीआई को पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात बन के दिखाया। और अब लोग कहते हैं कि इमरान खान वजीर आजम नहीं बनेंगे, तो गवाह रहना पाकिस्तानियों, गवाह रहना कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, 2018 आता है और इमरान खान वजीर आजम बन जाता। इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, हुकूमत का सफर इतना आसान नहीं होता। कुछ फैसले तारीफ पाते हैं और कुछ पर तनकीद होती है, लेकिन एक बात क्लियर थी, आवाम को इमरान खान से उम्मीद थी कि इमरान खान अपने बयाने में कामयाब हो जाएगा, मुफ्त तालीम और सेहत मिलेगी और पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होगा और फौरी इंसाफ से कानून की हुक्मरानी होगी।
पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। लेकिन इसी उम्मीद में इमरान खान की हुकूमत के 3.5 साल गुजर जाते हैं और फिर एक दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने सरदार उस्मान को पंजाब का वजीर आला नॉमिनेट किया। पेश होते ही सियासत के ऐवानों में हलचल मच गई। वजीर आजम ने काफ लीग के परवेज इलाही को वजारत आला की पेशकश कर दी, जो उन्होंने कबूल कर हमने ली। फैसला ये किया है, हम दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। असेंबली डिसॉल्व होती है और फिर एक सवाल पैदा होता है, क्या ये सब डेमोक्रेसी का हिस्सा था या फिर डेमोक्रेसी का इम्तिहान? फिर जल्द से फिर लॉन्ग मार्च, लेकिन इस दफा राहें बंद थी इमरान खान के लिए। 2013 से 18 तक इमरान खान ने कई जलसे और धरने किए, जिनमें 2014 का आजादी मार्च सह-ए-फहरिस्त है, 4 महीने तक जारी रहा। आखिर किसकी सपोर्ट थी? ये बात आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, इमरान खान की कैद एक शख्स की कैद नहीं है, ये एक सोच को कैद करने के मुताबिक है। चाहे कोई एग्री करे या ना करे, इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। उन्हें अपोजिशन में रहने और इलेक्शन लड़ने का हक मिलना चाहिए। अगर आप समझते हैं मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। और अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, सोल्यूशन। कौन बचाएगा पाकिस्तान? सियासत की इस लड़ाई की कीमत आवाम महंगाई और बेइत्मीनानी के आलम में अदा कर रही है। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, आवाम के पास ये 5 रास्ते हैं इस लड़ाई से पाकिस्तान को निजात दिलाने के लिए। नंबर 1, इज्जत। पाकिस्तान के इदारों की, आइन की और आवाम की इज्जत पर सवाल ना हो, बल्कि कारकर्दगी को बेहतर करने पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो इदारे हैं, आइन है और हम आवाम हैं। नंबर 2, जो इस वीडियो बनाने का मकसद है, दौरी शोहरत का खात्मा। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, पूरी कौम को दौरी शोहरत के खात्मे पर यकजा होना होगा। दोहरी शोहरत रखने वाले शख्स को किसी सरकारी ओहदे पर फैज नहीं किया जाए, चाहे वो ओहदा सरकारी हो या सियासी। और बाद अज फरागत फराज मनसबी, चाहे सदर पाकिस्तान हो, चाहे वजीर आजम पाकिस्तान हो, वजीर मशीर हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रिटायरमेंट के बाद किसी को मुल्क छोड़ने की इजाजत ताहयात नहीं होनी चाहिए। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, दोहरी शोहरत के खात्मे के लिए ये कानून बनाने की जरूरत है। नंबर 3, सियासी शऊर। सियासी इंतकाम बंद होना चाहिए, अवाम को इज्तिमाई तरक्की का शऊर देना चाहिए। नंबर 4, इकॉनमी। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, इकॉनमी को सियासत से आजाद रखना होगा, मेड इन पाकिस्तान के विजन पर आगे बढ़ना होगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए। नंबर 5, रूल ऑफ लॉ। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, पाकिस्तान को लीडर प्रस्ती की नहीं, कानून की हुक्मरानी की जरूरत है और यही हर तरक्की याफ्ता मुमालिक की तरक्की का राज है। लीडर आते जाते रहेंगे, मगर पाकिस्तान इंशाल्लाह कैमो दैम रहेगा। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, सियासत में इख्तलाफ होना चाहिए, मगर नफरत तबाही लाती है। इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान के नाजरीन, पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली के लिए सबको एक होना होगा। इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। इसी नजरिए के मुताबिक दोहरी शोहरत के खात्मे और कानून की हुक्मरानी पर हमें एक होना होगा। अगर आप समझते हैं दोहरी शोहरत के खात्मे के लिए इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान की आवाज बिल्कुल दुरुस्त है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, तो ये वीडियो अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।